Now, as we have discussed in the previous class about Bohr atomic model limitations, that he could not explain Zeeman effect, Stark effect, dual behavior, and there no, he was not including Heisenberg principle and the dual behavior as well. No explanation about shape of the molecules, and it was only for single electron system. So this was a reason that Bohr atomic model was discarded. So before moving to another atomic model, there were few discoveries being done, and one is dual behavior, which was being explained by scientist de Broglie. So de Broglie very well explained about the dual behavior of matter. He said that all moving particles as well as microscopic objects have dual behavior, means wave nature and particle nature. And for this, he has given an explanation with the help of a derivation. So, what is the de Broglie equation derivation? Let us see that. Planck's theory states that E is equal to h nu, and according to Einstein equation, E is equal to mc square. So h nu is equal to mc square because both are giving the value for energy. So we can equate h nu is equal to mc square. H nu, we also know that hc by lambda is also equal to h nu because nu is equal to c by lambda. C is speed of light and lambda is wavelength. Because equating the terms both sides, C is common. And after equating, we will get in terms of lambda that lambda is equal to h upon mc. C is the speed of light. It can also be as a vector quantity. It can also be represented by alphabet V. So it is equal to lambda is equal to h upon mv. mv is a physical quantity giving this product is also equal to momentum. So we can also write that lambda is equal to h upon p. H is a Planck's constant. Removing that, or we can say we can get it. Lambda is proportional to 1 upon p. Lambda represents the wave nature of the microscopic object, electron, or any form of matter. And p gives us the information about its particle nature because it is representing mass into velocity. So lambda of a, you can say wavelength of a moving particle is inversely proportional to its momentum, which clearly explains about the dual behavior of particle. So as clearly it explains about dual behavior of particles, so we conclude that the wave and particle nature of moving particle is the wave, or particle nature of a moving particle is inversely proportional to each other. Means wave nature and particle nature both are inversely proportional to each other. So here we can say that this has been proved. Now coming to limitation of de Broglie equation. Okay, so let us discuss the limitation of de Broglie equation. So for discussing the limitation, let us, and what is the limitation? It is not applicable for heavy objects or those objects which are having a very large mass. So let us prove this limitation. For an electron also this equation we will use, that lambda is equal to, for an electron also we will use lambda is equal to h upon momentum mv. And for a ball which is quite bigger than the microscopic object, then also we will use the same equation, that lambda is equal to h upon mv. This is mass of electron, this is mass of ball. Here mass is very small, so we will get a measurable wavelength. But here mass is very large. So if mass is very large, this entire ratio becomes very small. And what about the wavelength? So practically the electron has a wave character,
while no such character is associated with ball, which signifies that moving microscopic object is applicable for de Broglie equation. So if you consider the wavelength, here mass is very large, so wavelength is very, very small, negligible, that cannot be measured. So this is a reason that de Broglie equation is only applicable for a microscopic object, because microscopic object is mass is less, so wavelength is large, measurable. Mass is small, so wavelength will, sorry, mass is large, mass is small, so wavelength is large, measurable. De Broglie equation proved for microscopic object. But mass is very, very large. So wavelength will be very, very small. That is not measurable wavelength. So here the de Broglie equation will be not applicable for, we can say, for the ball. क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है कि अब तक हमने ये देखा कि हाँ इट इज एप्लीकेबल टू मूविंग माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट. नाउ व्हाट इज द एविडेंस? ये एविडेंस यानी कि सपोर्ट किसने किया, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ क्या है? सो इट वाज बीन प्रूव्ड बाय डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट. Davison and German diffraction experiment proved that microscopic moving object is having dual behavior. इसका मतलब ये है कि de Broglie explanation को experimental support भी मिला by Davison and German experiment, जिसने ये प्रूव कर दिया एक्स-रे डिफ्रैक्शन टेक्निक से कि हाँ मूविंग ऑब्जेक्ट का वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है. कैसे? इसका बहुत कम एक्सप्लेनेशन है. डिटेल एक्सप्लेनेशन यू विल गेट इन हायर क्लासेस, बट इन क्लास 12 और 11th लेवल you will get a small experimental explanation. This is a bulb giving light energy और यहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम पास आउट हुई एक स्लिट से इन अ स्ट्रेट लाइन पाथवे. सो ये जो इलेक्ट्रॉन बीम है एक स्ट्रेट लाइन पाथवे में पास हुई और ये निकल क्रिस्टल पर पड़ी. निकल क्रिस्टल ने क्या किया, डिफ्रैक्शन दिया इस इलेक्ट्रॉन बीम को, जो डिफ्रैक्शन यहाँ पर एक फोटोग्राफिक प्लेट पे ऑब्टेन की गई इस तरीके से. These are the diffracted electron rays obtained on this photographic plate. यहाँ पर ये डिफ्रैक्टेड रेज जो फोटोग्राफिक प्लेट पे एक्स रेज ऑब्टेन की गई, ये पूरे सर्कुलर रिंग के फॉर्म में ऑब्टेन की गई. ये जो स्पॉटेड सर्कुलर रिंग के आए, दैट वाज प्रूविंग द पार्टिकल बिहेवियर. यहाँ पर ये जो डॉटेड रिंग्स हमें इस फोटोग्राफिक प्लेट पे दिखाई दे रही हैं, यहाँ पे ऑब्टेन करने के बाद ये प्रूव हो गया कि ये पार्टिकल बिहेवियर रखते हैं. और डिफ्रैक्शन ये जो हो रहा है, ये डिफ्रैक्शन फिनोमेना जो इलेक्ट्रॉन या एक्स रेज एग्जिबिट कर रही हैं, ये डिफ्रैक्शन ही इसका वेव नेचर शो कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन रे डिफ्रैक्ट हो गई अपने पाथवे से. तो डिफ्रैक्शन फिनोमेना ये एग्जिबिट कर रही है और डिफ्रैक्शन एक वेव नेचर, क्योंकि डिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन ये सब वेव नेचर है. तो ये जो एक्स रेज डिफ्रैक्ट हुई और ये डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट जो किया गया, डिफ्रैक्ट हो गई, डिफ्रैक्शन रिजल्ट्स मिले, इसके बेसिस पे कह सकते हैं कि हाँ ये वेव नेचर है और जो रिंग्स ऑब्टेन की गई हैं वो एक पार्टिकल बिहेवियर भी शो कर रहा है. तो डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट ने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया ड्वेल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन को. उसके बाद थॉमसन एक्सपेरिमेंट भी हुआ. थॉमसन एक्सपेरिमेंट ने सिर्फ निकल की जगह गोल्ड फॉइल लिया और सेम रिजल्ट्स मिले. तो निकल क्रिस्टल की जगह थॉमसन ने गोल्ड फॉइल लिया और सेम डिफ्रैक्शन इलेक्ट्रॉन वेव्स मिली. तो थॉमसन ने भी सपोर्ट दिया कि यस इलेक्ट्रॉन मूविंग पार्टिकल्स और एक्स रेज आर हैविंग ड्वेल बिहेवियर. Now this much is understood. Means कि after de Broglie equation one more principle came into existence. Means de Broglie ने तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन का रिलेशनशिप बताया कि वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों है. लेकिन वर्नर हेजनबर्ग जिन्होंने क्वांटम थ्योरी में भी एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया है, he has also discovered something very important. क्योंकि जब हम माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की बात करते हैं
तो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट में Heisenberg is having a very important contribution. So our next topic is Heisenberg uncertainty principle. सबसे पहले प्रिंसिपल की बात करते हैं कि क्या है. It is not possible to measure simultaneously position and momentum of microscopic moving object with absolute accuracy. मतलब ये नामुमकिन है कि एक माइक्रोस्कोपिक मूविंग ऑब्जेक्ट का पोजीशन और वेलोसिटी एक साथ एक ही समय पर मेजर की जा सके. ये पॉसिबल ही नहीं है. इसको दूसरे वे में भी ये कहा कि प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी एंड मोमेंटम इज ऑलवेज कांस्टेंट. मतलब प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, ये मोमेंटम है. अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन, मतलब पोजीशन x रिप्रेजेंट कर रहे हैं और मोमेंटम का जो प्रोडक्ट है ये हमेशा एक कांस्टेंट आएगा. किसके लिए? माइक्रोस्कोपिक मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए. तो ये था स्टेटमेंट और ये बिल्कुल सही बात है कि भाई अगर एटम में इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है, लगातार मूव हो रहा है, तो उसका मोमेंटम तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं. भाई इसकी वेवलेंथ मेजर की, इस मूविंग इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ मेजर कर लें, h कांस्टेंट है और ये मोमेंटम हमें मिल जाएगा वेवलेंथ से. लेकिन क्या उसी टाइम पर इसकी पोजीशन क्या एक्सपेरिमेंटली जान सकते हैं? नहीं, क्योंकि लगातार वो चेंज हो रही है, लगातार चेंज हो रही है. जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एक फैन को भी कंसिडर कर सकते हैं कि फैन लगातार मूव हो रहा है. जो फैन रुका होता है तो उसके ब्लेड्स की पोजीशन आप जान सकते हैं, लेकिन जो वो मूव हो रहा है तो सिर्फ उसकी वेलोसिटी आप जान सकते हैं, हर ब्लेड की पोजीशन जान नहीं सकते. सेम थिंग इज एप्लीकेबल ओवर हियर. इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है तो पोजीशन जान सकते हैं, लेकिन अगर लगातार मूव हो रहा है तो उसका मोमेंटम कैलकुलेट हो सकता है. कैसे? उसकी वेवलेंथ से. वेवलेंथ मेजर कर लें, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है जो एमिट हो रही हैं उसको हम कैलकुलेट कर लें तो मोमेंटम हम जान सकते हैं. लेकिन हेजनबर्ग ने कहा कि एक्सपेरिमेंटली तो नहीं मेजर कर सकते, लेकिन मैथमेटिकली अगर मोमेंटम हमें मालूम है तो पोजीशन की अनसर्टेनिटी जान सकते हैं, और अगर पोजीशन मालूम है तो मोमेंटम की अनसर्टेनिटी जान सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला. डेल्टा x uncertainty in position, delta p uncertainty momentum, product is equal or less than h upon 4. अब मोमेंटम को हम थोड़ा सा एलाबरेट कर दें कि यहाँ पर भाई मोमेंटम mv के बराबर होता है. मास किसी भी ऑब्जेक्ट का चेंज नहीं होता कि इक्वेशन हो गई डेल्टा x, x जहां पर पोजीशन है उसकी, m उसी मूविंग पार्टिकल का मास और v उसकी चेंजिंग वेलोसिटी लेस देन होगी या इक्वल टू होगी h अपॉन 4 पाई से. इस इक्वेशन में अगर हमें पोजीशन मालूम है, मास फिक्स होता है, तो डेल्टा v हम कैलकुलेट करके मोमेंटम निकाल सकते हैं, और अगर ये क्वांटिटी मालूम है तो x कैलकुलेट कर सकते हैं. So this was all about Heisenberg uncertainty principle, which states that delta x into delta p is equal to h upon 4 pi. h upon 4 pi, जिसमें 4 नंबर है, पाई कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है. पोजीशन मालूम है तो मोमेंटम जान सकते हैं अनसर्टेनिटी, और अगर अनसर्टेनिटी किसमें है? पोजीशन में है, तो मोमेंटम पता है, मोमेंटम से हम कैलकुलेट इस इक्वेशन को यूज करते हुए मोमेंटम मालूम है तो पोजीशन कैलकुलेट कर सकते हैं, पोजीशन मालूम है तो मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं. क्लियर? इसका आता है सिग्निफिकेंस. क्या सिग्निफिकेंस है? अगर कोई ऑब्जेक्ट लगातार मूव कर रहा है तो उसको हम देख नहीं सकते, लेकिन मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं, और मोमेंटम जानकर उसकी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन हम मेजर कर सकते हैं. और अगर वो रुका है कहीं पर, उसकी पोजीशन पता है, तो हम उसकी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं. इसका हमारी जिंदगी पे क्या इम्पैक्ट है? एज सच हमारी एवरीडे लाइफ में इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ भी हम माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं जिसे हम देख नहीं सकते, और एवरीडे लाइफ में हमारे पास मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स हैं.
जिनको हम देख सकते हैं, तो उनके लिए भी हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल का कोई एप्लीकेशन एवरीडे लाइफ में एज सच आता नहीं। यहाँ पर इसका मेन एप्लीकेशन है माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए, जिनको हम नेकेड आई से ऑब्जर्व या देख नहीं सकते हैं। वहां पर ये प्रिंसिपल अप्लाई करके साइमल्टेनियसली उनका हम मोमेंटम और पार्टिकल नेचर जान सकते हैं। दूसरा, अब यहाँ पर एक इसका मेन सिग्निफिकेंस है जिसको आप नोट कर लीजिए। एन इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस। ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को डिस्कार्ड कर दिया कि इलेक्ट्रॉन, मतलब इसको प्रूफ दिया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं हो सकता। और ये प्रूफ हेजनबर्ग ने दिया कि क्यों इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। सोचने वाली बात है, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस। दिस वाज प्रूव्ड बाय हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। कैसे? लेट अस सी। अब न्यूक्लियस का एक अपना डायमीटर है 10 टू पावर -15। ये डायमीटर है न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस डायमीटर। ठीक है। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल किसके लिए एप्लीकेबल है? मूविंग ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन के लिए। डेल्टा एक्स इज मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा पी इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। यहां पर इसे हम एलैबोरेट कर दें। डेल्टा एक्स m डेल्टा v इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। यहां पर सारी वैल्यूज रखने के बाद हम डेल्टा v, भाई ये वैल्यू भी पता है, ये वैल्यू भी पता है, सारी वैल्यूज हमें पता है और हम डेल्टा v यहाँ पर मेजर कर सकते हैं। तो हेजनबर्ग कहता है कि अगर वेलोसिटी जो यहाँ पर हमने कैलकुलेट की है, ये सारी वैल्यू रखने के बाद अगर वो स्पीड ऑफ लाइट से कम आती है तो वो इतने डायमीटर में अंदर रह सकता है। लेकिन कैलकुलेट करने के बाद जो v की वैल्यू यहाँ मिली, वो स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा की वैल्यू थी। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये न्यूक्लियस का डायमीटर है। इस डायमीटर के अंदर अगर किसी भी मूविंग पार्टिकल को रहना है तो उसकी वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से कम होनी चाहिए। लेकिन इस इक्वेशन को यूज करने के बाद, सारी फिक्स्ड वैल्यूज यहाँ पर रखने के बाद, जो डेल्टा वी की वैल्यू आई वो स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा की आई। और अगर वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा है तो वो इस डायमीटर के अंदर वो मूविंग पार्टिकल नहीं रह सकता है, जो कि इलेक्ट्रॉन के केस में प्रूव हुआ। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वैल्यू जो यहाँ पर वैल्यूज रखने के बाद डेल्टा वी इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट की गई, वो डेल्टा वी वैल्यू इलेक्ट्रॉन की स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा आई, जो कि इस डायमीटर के अंदर रिसाइड नहीं कर सकता। और यही वजह है कि इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस। दिस इज क्लियर?